Hello everyone, welcome to Samay Shantipuri. I am Samadhi Pramanik, and this video is going to be dedicated only for Iman City Con section. This is a requested video, and in this video, we're going to understand the pattern. The questions we're going to solve would be very important in terms of Iman City, and we're going to also hit the concepts which are necessary for solving those type of questions, right? But this video is not going to be a substitute for your preparation, right? Because एक 10 घंटा वीडियो सब्सिट्यूट कैसे हो सकता है प्रिपरेशन का? वो खुद प्रिपरेशन ऑब्वियसली करना है फ्रॉम स्टडी मटेरियल्स आई प्रोवाइडेड और एनी स्टडी मटेरियल यू कैन फॉलो बुक्स लाइक एम टायरा आर्यन एस चांद एनी बुक दैट यू लाइक which are made for the competitive exam quant or LRDI section English also. This video is going to be a preparation booster for you so that अगर एग्जाम के पहले आप ये वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो सैम्पल पेपर्स का क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू कर पाओगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मिनिमम तो नेसेसरी है ओके फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको वो भी पता चल जाएगा ओके सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड come to two sample paper. As you know, two sample papers are already published. अगर आप नहीं देखो, अगर आप नहीं सॉल्व करो तो जल्दी जाओ खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद ये वीडियो देख लेना. बट या यू शुड सॉल्व दिस टू सैम्पल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है सो यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोज वेयर आई हैव ऑलरेडी पब्लिश द इनपैट का पेपर विच इज क्वाइट सिमिलर विद दिस सेम एनसीटी और आप सॉल्व कर सकते हो. देयर आर मेनी मेनी न्यूमरस क्वेश्चंस राइट. So this is the MNCT का entrance का जो sample papers है which is published. Let's come to the quant section and in the latter videos I'm going to publish the some sample paper solving of the English and LRDI section. Coming to the quantitative and numerical ability portion, you can see the first three questions. The first three questions are dedicated. First three questions are dedicated for set. You can come to the sample paper 2 also. You can also see the same format. Even the questions also look very similar. Okay. So सेट में आने के पहले आपको कुछ बातें मैं बोल देना चाहता हूँ सेट रिलेटेड ओनली कि सेट क्या है और क्या क्या चीज़ आपको एटलीस्ट पता तो हो जाना चाहिए if you're solving this savals. So this is set means what? Set means collection of elements, right? And those elements should be well defined. What? Well defined and unique. Okay, they should not overlap, they should be unique. And या सेट आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. वन इज इन रोस्टर फॉर्म, अनदर इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म यानी सपोज ए ई आई ओ यू द एलिमेंट्स आर क्वाइट विजिबल, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. और सेट बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन दिया रहता है वेयर यू सी दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन English alphabet, right? So you can convert from set builder to roster form, right? तो एक सेट को रोस्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया जा सकता है. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? अगर ए एक सेट है, अगर ए एक सेट है एंड यू एक यूनिवर्सल सेट है, सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़ के यू में जितना बचा दैट मीन्स यू माइनस ए. अच्छा, व्हाट डू मीन बाय ए माइनस बी? अगर ए एंड बी है दैट मीन्स बी और ए में जितना कॉमन पोर्शन है दैट यू जस्ट eliminate, and this portion except the common part with b, the except common part with b, what is left is called a minus b. You can also represent it as a intersection b complement. How? You see that this is u, this is a and this is b, right? So this is what? A intersection b. This is a intersection b. Now अगर आप इसको हटाना चाहते हो यू कैन ऑल्सो राइट बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ये भी आ गया. और बी कॉम्प्लीमेंट में ए जितना कॉमन क्या है, राइट? दैट इज ए दिस पोर्शन ओनली एंड दिस इज कॉल्ड a minus b, right? So this is all about your basic concept of a set. And coming to a very important formula, that is n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Another n of a union b
union C is equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C. So this is what you have to memorize. इसके पीछे भी लॉजिक है. You can use the Venn diagram to understand. This is quite simple. Okay. Now coming to the area of De Morgan's law, which is very important for you. De Morgan's law. De Morgan's law says A union B complement is equals to A complement intersection B complement, and A intersection B का complement is equals to A complement union B complement. This is so simple, right? Coming to the questions. See, this is a very easy question where it is in a set builder method. It is in a set builder method. It is in a set builder method. Now, you can just get into mind that A U के अंदर 1 से 9 तक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now this is A, B and C and D given कि A intersection B complement union A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढने जाओगे फिर यूनियन करोगे इंटरसेक्शन, इतना सारा क्या करने का जरूरत भाई. देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ. सो ए माइनस बी यूनियन दिस बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ यू कैन से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट. नाउ द थिंग इज दैट दिस क्या हो गया, अरे यार, हाँ. सो ए माइनस बी जो है, दिस ए माइनस बी, सो ए से बी, ए में से जो बी का कॉमन पार्ट है वो हटा दो. देखो ए में से बी का जो कॉमन पार्ट है लाइक 2 and 4 हटा दिया तो क्या बचा, 1 और 3 बचा. और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करें, ए यूनियन बी आप पहले फाइंड करो. ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया. सो 2 और 4 तो ओवरलैपिंग करे, सो यू डोंट टेक इट. 6 and 8 क्योंकि यूनिक एलिमेंट हो जाना चाहिए. So 1 2 3 4 6 8. So how many elements are coming here? 6 elements, right? 6 elements. Or in that set 1 and 3 are also there. In that set 1 and 3 is also there. That means अगर मैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कर दूं 1 और 3, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा. मतलब 1 2 3 4 6 8 छोड़ के क्या क्या बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा. So all these elements are there. So अगर मैं यूनियन कर दूं 5 7 and 9, so 1 3 5 7 and 9, this is my required set. और इसका n फाइंड करूँ तो 1 2 3 4 5, आंसर इज 5. So you can easily find the answer of this question. Okay, चलिए. What is this? This is a very simple thing. See, n of u is given, n of a is given, n of a intersection b is given, n of a intersection a complement intersection b complement is given, and n of b आपको फाइंड करना है. कैसे करें, बहुत सिंपल है. आपको डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है, और जो आपको मैं जो जनरल n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b का जो फॉर्मूला दिया था वो आपको यूज करना है, तो आपका आ जाएगा. सो यू शुड थिंक इन अ मैनर कि आंसर आप कैसे ढूंढोगे, राइट. आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. n of a plus n of b minus n of a intersection b is equals to n of a union b. ये आपको पता है, राइट. आपको क्या फाइंड करना है, दिस वन. देखो n of a, n of a क्या है, n of a है 24. n of b आपको फाइंड करना है, एंड n of a इंटरसेक्शन b भी दिया हुआ है, दैट इज 12. और ये आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ये आपको फाइंड करना है. ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, दैट मीन्स n of a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है. सो डी मॉर्गन्स लॉ लगा के आप ऐसा बोल सकते हो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. सो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 27. सो अगर आप 60 से माइनस कर दो, माइनस n of u माइनस a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर कर दो, तो दिस बिकम्स योर n of a यूनियन b. सो 60 से 27 माइनस कर दूँ तो क्या आया, 33, राइट. सो 33 आ गया, दिस वन, एंड दिस में x जिसको फाइंड करना है, राइट. सो x इज इक्वल्स टू, आप सॉल्व करो,
x is equals to 33 plus 12 minus 24. This is 45 minus 24. Answer is 21. This is your answer. I hope you got it. This is a quite simple सवाल. देखो, आपको ना ये जो टाइप का सवाल है ये आपको ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा, राइट? ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन चेक करने से ज़्यादा मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है. अब देखो, अगर मैं इसको देखूँ, राइट, अगर मैं इसको देखूँ a माइनस बी माइनस सी, राइट, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी. ऐसा क्या हो सकता है? देखो, a बी और सी, मैं तीन सेट ले लिया, ए बी सी. ए माइनस बी माइनस सी, अगर मैं बी माइनस सी बोलूँ, बी माइनस सी मतलब क्या? लाइन का जो सेगमेंट मैं ड्रॉ करो, जो पैटर्न, वो आप थोड़ा केयरफुली देखना. दिस इज माई बी माइनस सी. और ए माइनस बी माइनस सी मतलब दिस इज माई बी माइनस सी. सो ए से बी माइनस सी का पोर्शन में हटा दूँ, सो ये वाला पोर्शन में हटा दूँ. सो ये जो एरिया बचा, वेदर दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी. देखो, सॉरी, हाँ, ए बी एंड सी. अब ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी. अब इसको हटा दो. ए माइनस बी मतलब कौन सा एरिया? दिस एरिया. ओके. और ए माइनस बी से सी का पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो. सो ये जो बचा, whether this is similar or not. It's not similar. देखो, a माइनस बी मतलब क्या? a माइनस बी मतलब दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, और उसमें से c हटा दिया, सो दिस पोर्शन भी हटा दिया. मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ओनली दिस एरिया विच इज इन अ फॉर्म लाइक दिस. और b माइनस सी मतलब b माइनस सी, b माइनस सी मतलब इसको मैं हटा दिया, सो दिस एरिया b माइनस सी. और a से मैं b माइनस सी वाला पोर्शन हटा दिया, सो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज माई a माइनस बी माइनस सी. दैट मीन्स this area and this area is not similar, so this is not true. so आपको ऐसे देखना है. लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दिस इज माई ए, मेरा पॉइंटर बराबर चला जा रहा है, हाँ, ओके. अगर मैं इसका बात करूं, a माइनस बी, देखो ये तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे. a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी, अगेन आप ड्रॉ करो एक बार, ए बी सी, ए बी और सी, राइट. बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी मतलब ये होल एरिया, दिस इज बी यूनियन सी. और a माइनस अगर आप ये हटा दो, तो ये वाला एक पोर्शन बच जा रहा है, राइट, ये वाला एक पोर्शन बच जा रहा है, दिस एरिया, दिस एरिया. और a माइनस बी क्या है? a माइनस बी, a माइनस बी है दिस एरिया, दिस एरिया, राइट. एंड a माइनस सी क्या है? a माइनस सी, a माइनस सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन. a माइनस सी मतलब दिस एरिया, ये c को छोड़ के ये वाला एरिया, ये वाला एरिया. तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला एरिया. सो ये भी देखो एक ऐसा ही शेप ले रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन. आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ. सो दिस इज सेम, इजंट इट? दिस इज सेम. सो ये मेरा ट्रू आंसर है. आई होप यू गॉट इट. So this is the way you have to do the questions. Coming to the sample paper 2, sample paper 2,
आप देख सकते हो सेम टाइप ऑफ सवाल है, बहुत ही सेम टाइप ऑफ सवाल है. आई होप यू अंडरस्टूड. Okay. Now, what do you mean by this? F of x, g of x, fog of x is equals to gof of x. That means this is a very easy सवाल. Let us solve it. Okay. So fog of x मतलब f में g आएगा और gof of x मतलब g में f आएगा. So how to solve it? मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, ठीक है. सो फॉग ऑफ x यानी कि इसके अंदर g आएगा 2x प्लस 3. ओके, 2x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x. गॉफ मतलब 2, x के अंदर क्या आएगा kx माइनस 1 प्लस 3. आई होप यू गॉट इट. सो 2kx प्लस 3k, 2kx प्लस 3k minus 1 is equals to 2kx minus 2 plus 3. So 2kx and 2kx is cancelled, 3k and 1 इधर चला गया plus 3 minus 2, so 2 by 3. So this is your answer. Have you understood it or not? This is a quite simple सवाल. चलो, ये भी फॉग और गॉफ का क्वेश्चन है. ओके, अब इसको कैसे किया जाए. बेसिकली ये इनवर्स है, राइट. तो इनवर्स को कैसे सॉल्व किया जाए मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है. पहले फॉग फाइंड करो. फॉग मतलब एफ के अंदर जी, राइट. चलिए देखो, एफ ऑफ एक्स पहले फॉग फाइंड करते हैं. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 2. ठीक है. सो दिस मीन्स 3x क्यूब प्लस 15 माइनस 2, दैट इज 3x क्यूब. ठीक है, प्लस 9. सो दिस इज माई फॉग. सो मैं बोल सकता हूँ माई फॉग इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 9. अच्छा सॉरी, दिस इज 2, राइट. So this is 13. 3x cube plus 13. Did you understand or not? Clear? So this is my function. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ y is equals to 3x cube plus 13. अभी मैं इसको इन्वर्स में कैसे करूँ. देखो y, मैं इनपेट का जो पेपर सॉल्व किया था ना उसमें भी इन्वर्स करने का जो मेथड है वो दिखाया था आपको. तो ये 3x क्यूब इधर माइनस कर दो. अब ऐसे कर दो 3x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 13, राइट. सो x क्यूब इज इक्वल्स टू y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 3, राइट. सो x इज इक्वल्स टू y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 3, 1 था. राइट. सो कैसे आप सॉल्व करें. अगर आप माइनस 11 डाल देते हो, माइनस 11 माइनस 13 divided by 3, 1 by 3. So this becomes this and this becomes this. This becomes 8. So this becomes minus 2.
योर आंसर इज दिस. दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो दिस मीन्स इज इक्वल्स टू x माइनस 13/3 का रूट ओवर 1/3 पावर 1/3. ओके, दिस देखो इनवर्स का मैं एक सवाल कर दिया हूँ. आई होप देर इज नो नीड ऑफ डूइंग मोर. लेट मी कम टू हियर. ओके, ये क्वेश्चन को कैसे करें? हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन को कैसे करें? देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सिंपली आप ऐसे देखो, इट इज़ अ रेंज. व्हाट डू मीन बाय रेंज? रेंज मीन्स देखो अगर रिलेशन है मेरा रिलेशन, दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड रेंज. इफ एक्स और वाई ले लेते हैं, अगर ये सेट से ये सेट तक कोई रिलेशन है, ओके, एंड दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज माई आउटपुट. सो रेंज हमेशा अगर एक मशीन है, मशीन में कुछ इनपुट डालो तो आउटपुट निकलता है. सो अगर मैं इनपुट जो है इसको डोमेन मानता हूँ, दिस इज माई रेंज. दिस इज अ फंडामेंटल थिंग ऑफ रिलेशन फंक्शन कि डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है. ठीक है, डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है. चलिए, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√ओवर इन 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो एक चीज तो आप समझ लो, ये माइनस तो कभी नहीं हो सकता. वाई माइनस तो कभी नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो रूट के अंदर है. सो एफ ऑफ एक्स अगर वाई है तो अगर रूट के अंदर है, जो आउटपुट आएगा एक्स में कुछ भी डाले, एक्स में कुछ भी डाले, हमेशा हमेशा वो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूट के अंदर है. राइट नाउ चेकिंग दिस वेदर दिस विल बी आंसर और दिस विल बी आंसर. क्योंकि देखो एक्स जो है वो एक्स कुछ भी हो सकता है. एक्स रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आपको पता है ना क्या क्या नंबर्स होता है? रियल नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. रियल नंबर के बाद रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है. रैशनल के बाद क्या क्या है? इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये सब पता है ना. सो ये जो एक्स है वो कुछ नहीं बोला है, मतलब ये रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यानी यानी मैक्सिमम ये क्या हो सकता है? देखो अगर ये एक्स जीरो होता है, अगर एक्स जीरो होता है, दैट मीन्स √9 - 0 1/3 लोएस्ट हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो नहीं हो सकता. राइट, सो क्लोज इंटरवल मतलब क्या? ये 1/3 भी इंक्लूड होगा. अगर मैं नंबर लाइन लिखूँ, ये 1/3 जो है ये भी इंक्लूड होगा इसमें. दैट मीन्स 1/3 मेरा आंसर है. सो यही मेरा आंसर है. अब इसमें मैं कुछ भी डालूँ, इसमें मैं कुछ भी डालूँ, सपोज 4 डालूँ, 5 डालूँ, कुछ भी डालूँ, देखो एक एक चीज़ तो है, मैं पहले इसका डोमेन फाइंड करूँगा. पहले तो मैं आर मानूंगा, उसके बाद मैं डोमेन फाइंड करूँगा. वेदर डोमेन रहेगा कि नहीं, कुछ भी. चलो पहले 5 लेते हैं. वेदर 5 कैन बी माई डोमेन? नो, इट कैन नॉट बी माई डोमेन. 4, वेदर 4 कैन बी माई डोमेन? नो, इट कैन नॉट बी माई डोमेन. 3, या 3 कैन बी माई डोमेन. सो डोमेन क्या है इसका? डोमेन है -3 से 3. राइट, आई होप यू गॉट इट. तो मैं ऐसे ही पहले ही बोलने के लिए आपको पहले बोला कि भाई पहले आर समझ लो, उसके बाद फंक्शन के हिसाब से डोमेन और रेंज निकालो. ठीक है ना. चलिए ये सवाल करते हैं. एफ इनवर्स ऑफ -4 एट एफ इनवर्स ऑफ -4. आप देख सकते हो कि इनवर्स का सवाल आ रहा है. ठीक है ना. तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू दैट, क्योंकि इनवर्स का एक सवाल मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ. जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. चलिए ये तो बहुत ही इजी सवाल है. अ स्कूल अवॉर्डेड 40 मेडल्स in football, 17 in basketball, 18 in cricket. If these medals went to a total of 56 students and only 4 students got medals in all 3 sports, how many students received medals in exactly 2 of the 3 sports? इसका मतलब क्या है? देखो टोटल
ये भी सेट का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। क्या हो रहा है यार, ये भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है लेकिन सिंपल है। देखो टोटल 40 है। फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है एंड क्रिकेट है। सो फुटबॉल में कितना दिया, 40 मेडल्स। बास्केटबॉल में कितना दिया, 17। क्रिकेट में कितना दिया, 18। इफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 56 स्टूडेंट, टोटल 56 स्टूडेंट्स को ही गया है। मतलब अगर मैं इसका एडिशन करूं दैट मीन्स एक ही स्टूडेंट को 2 3 गया होगा, राइट। देखो total of 50 students, only 4 students got medal in all 3 sports, यानी number of football intersection, basketball intersection, cricket is equals to 4. Then how many students receive medals in exactly 2 of the 3 sports? That means number of, exactly बोला है, right, exactly बोला है, exactly 2 of the 3 sports, यानी इसको आप वेन डायग्राम से करो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो फुटबॉल में कितना है, 40 है। अ, बाहर लिखता हूँ। फुटबॉल में कितना है, 40 है। 17 है बास्केटबॉल में, और ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट है। और जो तीनों का जो बीच में जो है, दिस इज 4 स्टूडेंट्स, राइट, 4 स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप, मैं इधर आपको दिखा दूँ, अगर आप ऐसे सॉल्व करो, एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल 40, बॉल बास्केटबॉल cricket 17 18, number of football intersection basketball intersection cricket is 4. So क्या फाइंड करना है हमको, को ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, दैट इज एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू number of F plus number of B plus number of C minus number of F intersection B minus number of F intersection C minus number of B intersection C plus number of F intersection B intersection C, राइट। टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 56 स्टूडेंट है। ये मेरा 56 आ गया, ये 40 आ गया, ये 17 आ गया, ये 18 आ गया, और ये क्या आया, ये 4 आ गया। तो ये मेरा x है। तो एक बार सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर की देना है। 56 माइनस 40 माइनस 17 माइनस 18 माइनस 4। सो देखो 23 आ गया, ये माइनस 23 आ गया, ये माइनस x है, ये x इक्वल टू, दैट मीन्स दे आर receiving exactly 2, right? So answer is क्या, 23। देखो, आई होप यू गॉट इट। देखो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है आपके सामने, ये आप खुद कर सकते हो। आपको सिर्फ ये बॉडमस रूल पता होना चाहिए। क्या बॉडमस रूल, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मतलब इनटू, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी एक करो, और उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन पैरेलली करो, ठीक है। सो अगर आप बॉडमस रूल जानते हो तो ये आप सॉल्व कर पाओगे। ये भी सेम है, इसमें सिर्फ फंडा क्या है, देखो इसमें सिर्फ फंडा क्या है, when x is multiplied by y the result is 9। दैट मीन्स ये जो x है, x के साथ अगर y मल्टीप्लाई करें तो 9 मिलेगा। तो अगर आप इसको फाइंड कर दो और x डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो y मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग। चलो
देखो, अगर आप मैं तो बोलूँगा, अगर आप सीरीज़ के क्वेश्चन आपको करना नहीं आता, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको सीरीज़ का क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत आता है, एक क्वेश्चन में माथापेची मत करो, मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है। तो मैं सीरीज़ का जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ये इधर भी है एक क्वेश्चन, इधर भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखो सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, पैटर्न एकदम डिटो सेम है, पैटर्न एकदम डिटो सेम है। ये मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ, लेकिन एक सीरीज का क्वेश्चन में देखा था इधर, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है। ये भी इजी है, ये तो सिंपल सॉल्व करने जैसा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये लेंदी है। तो मैं और एक वीडियो में ये दो क्वेश्चन जो है सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपको सीरीज का क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए, जो कि अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये जो दो क्वेश्चन है अलग से मैं बना दूंगा सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी सिंपल है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई माथापेची करने का ज़रूरत नहीं है। देखो, कैलकुलेशन टाइप बहुत सारा क्वेश्चन आ जा रहा है, राइट। ओके, देखो, सम ऑफ 11 टर्म ऑफ द सीरीज 1/14, 1/35, 1/65 is a by b, where HCF of a and b is equals to 1, then what is the value of 11 a minus b? ओके, ये भी सीरीज का सवाल है, तो मैं सीरीज का जो सवाल है वो एक साथ करूंगा, एक साथ। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b? देखो, ये जो इधर भी एक क्वेश्चन है, मैं दिखा दे रहा हूँ उसको। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपको रैशनलाइज कर करना है, ठीक है। ये तो सिंपल सवाल है। और मैं पहले ये वाला क्वेश्चन आपके साथ कर देता हूँ, जो मैं इधर छूट गया था। हाँ, देखो, a and b and c are थ्री फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस पे सवाल आता है। When a is divided by b, result is 9/10, which exceeds c by 1/40. If the sum of a, b and c is 59/24, then a plus b minus c। ये तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो, when there are three fractions a and when a is divided by b, the result is a by b, a is divided by b, result is 9/10, ठीक है, which exceeds c by 140। So c plus 140, 140, c plus 1/40 is equals to 9/10. The sum of a, b and c, a, b and c is 59/20, ठीक है। सो a प्लस b माइनस c क्या है, ठीक है, दिस इज द सवाल। सो c क्या है, c इज इक्वल्स टू 9/10 माइनस 1/40, ये मेरे को पता है, राइट। 35/40 ये तो आ गया। तो a प्लस b इक्वल्स टू 59/24 माइनस c, दैट इज 35/40, राइट। अब इस सब को हटा दूं मैं, इरेज कर।
तो 59/24 माइनस 35/40, ठीक है। और ये माइनस सी बोला है, माइनस सी मतलब 35/40, ठीक है। तो 59/24 माइनस 70/40, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे विरेज करो भाई, बहुत सिंपल सवाल नहीं है ये। तो इसको हटा दो तो ईजी हो जाएगा। और 24, ये 59, ये 42, सो 7 एंड इन 1 17/24। देखो आंसर है कि नहीं, आंसर आगे सही। ये बहुत ही इजी सवाल नहीं है क्या? ओके, तो सीरीज का क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आप रैशनलाइज करो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये सवाल पे आते हैं। कविता spends 66 and 2/3% of her income. If her income increases by 14%, expenditure increases by 10%, his saving will increase by, okay, चलो देखते हैं। कविता spent 66 and 2/3% of her income. If her income increases by 14%, expenditure increases by 10%, then her savings will increase by. सो मेरा जो इनकम है इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर जो है उसको मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ यहाँ पे करता हूँ, जगह नहीं है। सो क्या बोला है, कविता स्पेंड 66 एंड 2/3 ऑफ हर इनकम। सो इनकम का 66 2/3% एक्सपेंड करता है, ठीक है। इफ इट्स इनकम इंक्रीजेस बाई 14%, अगर इसका इनकम 14% हो जाता है, मतलब 114% बढ़ जाता है, and the expenditure increases by 10%, and expenditure increases by 10%, then his saving will increase by. तो अगर this is was the previous state, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, ये न्यू सेविंग है। और पहले क्या होता था, पहले इनकम जो सेविंग होता था, इनकम माइनस इनकम इंटू 66 2/3%, ये होता था सेविंग, ठीक है। तो ये जो ओल्ड सेविंग है और न्यू सेविंग है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये है इनकम 114/100, मैं ऐसे मान लूँ। और जो एक्सपेंडिचर है वो तो देखो 66 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ 200/300 और 2/3, ये और इजी हो जाएगा, ठीक है। 2/3, ठीक है। 2/3, तो 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, देखो इनकम का 2/3 है एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर क्या है, 2/3 ऑफ इनकम, ठीक है, इंटू 110, ठीक है, राइट। दिस इज माई न्यू सेविंग। चलो आई को मैं कॉमन कर लूँ। सो 114 डिवाइड बाई 100 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 300। आई होप यू आर गेटिंग इट, न्यू सेविंग आ गया। सो दिस सेविंग इज, इसको कैलकुलेट करो, 300 114 इंटू 342 माइनस 220 इज इक्वल्स टू न्यू सेविंग। और ये क्या आया, 342 माइनस 220 इज 122, 122 डिवाइड बाई 300 इक्वल्स टू न्यू सेविंग। और ओल्ड सेविंग क्या था, ओल्ड सेविंग था, देखो ओल्ड सेविंग, ये बहुत
झमेला करता है तो ओल्ड सेविंग। ये देखो, ये था 1 - 2/3, ठीक है। 1 - 2/3 दैट इज I इंटू 1/3, ओके। सो सेविंग ओल्ड था I इंटू 1/3। सो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है सेविंग विल इंक्रीज बाय, सेविंग विल increase by, so income into 1/3 minus income into 122 divided by 300 divided by income into 1/3, ठीक है सर। into 100, ये परसेंटेज में बोला है, तो चलिए ये तो इनकम इनकम कट जाएगा, आई आई सब कट जाएगा। सो 1/3 माइनस 122/300 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 100, ये 300 आ जाएगा। और ये देखो ये न्यू न्यू तो ज़्यादा है ना, सो ये उल्टा आएगा, ठीक है। हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, सेम ही मतलब जस्ट साइन चेंज करना है। तो 122, ठीक है। और नीचे क्या है, बेसिकली 1/3 इंटू 100, ये 300 कट जाएगा नहीं, सो ये बेसिकली 100 ये कट जाएगा, जो भी है मतलब इसको मैं 20% मान सकता हूँ कि नहीं। ये क्यों माइनस नेगेटिव आया, क्योंकि मैं जो न्यू है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है, ओके। सो दिस इज द आंसर 22। यू गॉट इट और नॉट? चलो, this question is what a shopkeeper bought 28 kg for 1260. He sold it for the profit equal to selling price 4 kg. The selling price of the sugar is what? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। शॉपकीपर bought 20 kg for 1260. He sold it at profit equal to selling price of 4 kg. The selling price of sugar price was, देखो cost price was what? CP was 1260 divided by 28, that is 45 rupees per kg, ठीक है। He sold it at profit equal to the selling price of 4 kg. He sold it at a profit equal to selling price of 4 kg of it. He selling price of sugar was what? क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है अच्छा से देखो, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट, ये बेचा है एक प्रॉफिट में, विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ इट। यानी जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg है, मतलब 28 का जो सेलिंग प्राइस है, दिस माइनस जो कॉस्ट क्या है 1260 divided by, so this is my profit, this is my selling price, this is my cost price, is equals to profit क्या है, प्रॉफिट है 4 इंटू एक्स, 4 kg of selling price, so 24x is equals to 1260, so x is equals to 1260 divided by 24, आंसर इज 52.5। आई होप यू गॉट इट। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको पढ़ना अच्छे से है। देखो, a trader gains 25% by selling an article at 20% discount on its market price. The cost price of the article increases by 20%. How much discount percent? ये भी इनपैट में आया था, मैं ये कर दिया हूँ इनपैट का पेपर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप यू शुड नॉट वरी मच अबाउट इट।
ठीक है, क्या ही कराओ मैं ये सवाल को। अच्छा करा ही दे रहा हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। देखो, ट्रेडर गेट्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तो डिफरेंट होता है ना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट होता है। देखो बाजार में ये जो एक टैग रहता है ना, यहाँ पे एक मार्क प्राइस रहता है, जो 10% डिस्काउंट भी रहता है। जो 10% डिस्काउंट के बाद आपका प्राइस होता है, जो प्राइस देके आप खरीदते हो, दैट इज द सेलिंग प्राइस फॉर द सेलर। और मार्क प्राइस तो ऐसे दिखाने के लिए होता है। ठीक है, एक ऐड आया था ना। ठीक है चलो करते हैं ये लोग। तो मार्क प्राइस जो है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ पे करते हैं सो दैट इजीली दिख पाए आप लोग। वैसे ये आप जब खुद करोगे बहुत जल्दी आप कर पाओगे, जस्ट रफ में करना है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए मैं इधर कर रहा हूँ। ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। दैट मीन्स जो एक्स है, एक्स में से 20%, ये एक्स मेरा मार्क प्राइस है। एक्स इज इक्वल टू क्या है, मार्क प्राइस। एक्स माइनस 20% अगर मैं कर दूँ तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और trader gets 25% by selling an article 20, the cost price of article increases, trader gets 25% by selling an article at 20% discount। और ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कुछ होगा सीपी। ठीक है, जो सेलर है वो सेलर जो है वो 25% ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, the cost price of the article increases by 20%, how much discount percentage should he allow now for gaining the same percentage gain? Okay, so अब इसको ना एक अच्छा मेथड से मैं आपको कराऊँ क्या। देखो x माइनस ये क्या आ गया, x बाई 5। सो ये आ गया 4x बाई 5, राइट, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो मेरा जो गेन है, ओके, दैट इज हाउ मच द कॉस्ट प्राइस, ट्रेडर गेट्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 20 मेरा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 120। ये आप मानते हो कि नहीं। तो इधर 25% पे सेलिंग एंड आर्टिकल मतलब कॉस्ट के ऊपर 25% गेन हो रहा है। सो 25% मतलब क्या, 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स 1/5 ऑन सेल। ये कैसे आया मैं लास्ट में तो बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा याद करके रखो कि जब कॉस्ट सेल आएगा इसे +1 कर देना, और सेल से जब जाना तो -1 कर देना। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बाद में बता रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो एस पी आया, एस पी में से जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे निकालोगे, एस पी में से कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे। देखो 4x/5, यहाँ पे क्या बोला है, 25% गेन हुआ था। 25% गेन हुआ था मतलब सेल में कितना गेन हुआ था, 20% गेन हुआ था 1/5। सो इन टू, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो ये है 4x/5, मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस से। तो अगर दिस इज माई प्रॉफिट 1/5, ठीक है, सो 4x/5 माइनस 4x/5 इंटू 1/5, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दिस इज माई व्हाट, प्रॉफिट। आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। आप कमेंट कर देना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। ठीक है,
तो ये 25 आ गया, ये 20x आ गया, ये 4x आ गया, और ये 16x आ गया, ये 25 आ गया। सो दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सो अगर ये जो कॉस्ट प्राइस है, अगर ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 20% बढ़ जाता है, अगर कॉस्ट प्राइस 16x प्लस 25 प्लस 16x बाई 25 इंटू 20% हो जाता है, ओके, दैट मीन्स 16x बाई 25 ये, ओके, प्लस 16x बाई 125, ये 125 आ गया, 80x प्लस 16x, ये 96x बाई 125 आ गया। अगर ये मेरा 96x बाई 125 है तो मेरा क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, अच्छा क्या मार्क प्राइस, क्या बोले, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड यू अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस टू गेन 10%। ठीक है। तो 96x 125 में मैं प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ, तो सेलिंग प्राइस इससे ऐड कर दो 125 इंटू 10%। ठीक है। 96x बाई 125 प्लस 96x इंटू 10 बाई 12,500, इसको आप ऐसे करो। सो ये 1250, ये 960x हो जाएगा प्लस 96x, सो 960 प्लस 96 इज 1056 x डिवाइड बाई 1250, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये अगर मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी मैं कितना डिस्काउंट दूँ ऑन द मार्केट प्राइस, यानी x माइनस हाउ मच, x माइनस हाउ मच की सेलिंग प्राइस 105x डिवाइड बाई 1250 आ जाए। ठीक है। x माइनस कितना डिस्काउंट दूँ, x माइनस कितना डिस्काउंट दूँ कि सेलिंग प्राइस जो है वो 10 आ जाए। तो आप एक बार 1056 डिवाइड बाई 1250 करो, तो 105x बाई 1250 डिवाइडेड बाई x इंटू 100 कितना आ रहा है, दिस इज माई 84.48% ऑफ x, यानी अगर x है दिस, सो 84.48 x है क्या सेलिंग प्राइस। सो x में से x, तो दिस इज माई 100%, राइट, एंड दिस इज 84.48%, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। 15.52% एंड दिस इज योर आंसर। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, आप खुद से भी कर सकते हो कि नहीं, ये एक लेंदी मेथड मेरे को भी लग रहा है, लेकिन
ये मेथड से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप खुद का मेथड मेरे को कमेंट करके बताओ। ये बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं ऑब्वियसली। मैं आपको थोड़ा और एक चीज़ समझाने के लिए थोड़ा लेंथी चला गया, लेकिन मैं और एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ इधर कि कैसे वो आया। ये मेरा कॉस्टिंग में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा इच्छा हुआ कि ये भी पढ़ा दूँ। देखो, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। मतलब अगर 100 का 25 जो है लगा के, ये 100 अगर कॉस्ट है, इसमें 25 प्रॉफिट ऐड करके अगर सेल 125 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये 125 का कितना होने वाला है? आप फाइंड करो। दिस इज गोइंग टू बी 20%। अच्छा, फ्रैक्शन में कैसे समझे? फ्रैक्शन में अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है, आ गया, हाँ, अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है, सो हाउ दिस इज 1/5 ऑफ सेल? कैसे? देखो, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन 1 2 3 4। नाउ अगर दिस इज अ कॉस्ट, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये मैं एक्स्ट्रा और एक ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है ये ऐड करके ये टोटल एक 5 एरिया का, सेम एरिया का एक सेल आ जा रही है। पहले कॉस्ट था, ये एक सेम एरिया में ऐड कर दिया तो ये सेल आ गया। सो अब जो ये एरिया है, ये मैं ये 5 में से एक बोलूंगा ना, तो टोटल 1 2 3 4 5 है, 5 में से इसको एक बोलूंगा, इसीलिए ये 1/5 है। क्लियर? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कॉस्टिंग। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मैं बहुत ही आगे चल चुका हूँ। Okay, these are the questions which you have done in your childhood. Ratio of the age of A and B is 5:4. Ratio of the present is 6:5. What will be the age ratio of age? Okay, A and B after 4 years from now. तो उसको कैसे करो? 8 साल पहले रेशियो ऑफ वेज वॉज ए एंड बी, तो पहले मैं ऐसे मान ले रहा हूँ कि ये 5x था और ये 4x था। 8 साल पहले ऑब्वियसली ये था, तो प्रेजेंट एज में ये 5x+8 हो जाएगा और ये 4x+8 हो जाएगा। 8 साल बीत गया ना, 8 साल गुजर चुका है, और प्रेजेंट एज ये 6:5 होने वाला है। और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ? यानी 5x+12 डिवाइडेड बाई 5x+12 डिवाइडेड बाई 4x+12 क्या होने वाला है? तो आप दोनों को सॉल्व करो इक्वेशन और इसमें पुट कर दो x का वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक बार यहाँ पे भी देख लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा, ये क्या आ गया, थोड़ा नया कंसेप्ट आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ये सब का। तो ये मैं और एक वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सब सिंपल सिंपल सवाल है। तो आपका तो इतने सारे क्वेश्चन अप टू दिस, सो सो अप टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही है। इसके बाद आपका थोड़ा बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा, डिस्टेंस टाइम रेट, ठीक है, एपीजीपी का, और थोड़ा एल्जेब्रा टाइप क्वेश्चन, रूट्स, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह, ये सब आएगा। तो ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में, और जो सीरीज का 2 क्वेश्चन बचा वो भी मैं कर दूंगा दो नेक्स्ट पार्ट में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलियो, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल, और आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा वीडियो। तो या दैट्स इट, टाटा।